তাহলে বলেছিলাম জাহাজ, ভেসেল সবই পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেল আর সেলিং ভেসেল ছিল না। সেলিং ভেসেল মানে যেটা পালের সাহায্যে চলে, পাল হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে যে জাহাজটা যায় তাকে সেলিং ভেসেল বলে, আর বাদ বাকি সব পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেল। তো পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেলকে আগের দিনে ক্লাসে কি বলা হয়েছিল, পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেল যে কে কী কাজ করছে সেই হিসাবে জাহাজের টাইপ বিবেচনা করা হয়। যেমন সবই পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেল, পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেল যখন পাইলট নিয়ে যায় তখন সে পাইলট ভেসেল হয়ে যায়, ঠিক আছে, পিডিভি পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেল। এই যখন পাইলট নিয়ে যায় পাইলট ভেসেল হয়ে যায়। যখন এ ফিশিং করে, ফিশিং করছে যে ভেসেল, তখন হয়ে যায় ফিশিং ভেসেল। তো পাইলট নিয়ে গেলে এইগুলো তোমরা একটু বইটাতেও ফলো করবে, শুধু আমি একবার করে বলে দিচ্ছি, এবার বইটা তোমাদের একটু পড়তে হবে, ঠিক আছে। পাওয়ার ড্রাইভিং ভেসেল রাত্রে কি লাইট জ্বালায়? মাস্ট লাইট, সাইড লাইট, স্টার্ন লাইট। মাস্ট লাইট কত পয়েন্ট ওইগুলো আগে বলেছি, আর বলে সময় নষ্ট করবো না, তোমরা সেগুলো দেখো। 4টে লাইট জ্বালায়। এবারে সে যদি পাইলট নিয়ে যায়, পাইলটের জন্য একটা সিগন্যাল লাইট দেয়, বা দিনের বেলা হলে কোনো সেফ দেয়। দিনের বেলা একটা এখন আসছি না, এখন লাইটগুলো তোমরা শেখো। তো সেফ দেয় কি? পাইলট নিয়ে গেলে পাইলটের হোয়াইট রেড, মানে জাহাজের এটা তো মাস্ট, আর এই ইয়ারড্রাম, মাস্ট, ইয়ারড্রাম, ইয়ার্ড আর্ম, ইয়ার্ড আর্ম। তো ইয়ার্ড আর্মেতে এই পাইলট নিয়ে গেলে সিগন্যাল লাইটগুলো যেগুলো ইয়ার্ড আর্মেতে ঝোলানো হয়, অনেকে এই মাস্টের সাথেও এরকম ছোটো ছোটো ইয়ার্ড আর্ম করা থাকে, ছোটো ছোটো এরকম ইয়ার্ড আর্ম করা থাকে, এগুলোতেও লাইট বসাতে পারে, ঠিক আছে, বা ইয়ার্ড আর্মে ঝুলিয়ে দিতে পারে, যা খুশি। ওকে, বোঝা গেল? তো পাইলট নিয়ে গেলে পাইলট জাহাজের জন্য ও তো মাস্ট লাইট জ্বালাবেই, 50 মিটার ছোটো হলে বা বড়ো হলে যেমন দেয়, ওগুলো আগে তোমরা দেখবে। মাস্ট লাইট, সাইড লাইট আর স্টার্ন লাইট এ তো থাকবেই। প্লাস কি থাকবে, যদি সে পাইলট নিয়ে যায়, জাহাজে পাইলট থাকে, পাইলট জাহাজ ভেসেল হয়, তাহলে সে পাইলটের জন্য দুটো আবার লাইট দেবে, একটা হোয়াইট একটা রেড। আমি বলেছিলাম কি, মাস্ট লাইট 20 পয়েন্ট, সাইড লাইটগুলো 12 পয়েন্ট, 10 পয়েন্ট করে, আর স্টার্ন লাইট 12 পয়েন্ট, আর অন্য কোনো লাইট থাকবে সেগুলো 32 পয়েন্ট, মানে 360 ডিগ্রি। যেমন এই পাইলট ভেসেলের জন্য যে হোয়াইট আর রেড দিল, এগুলো কিন্তু 32 পয়েন্ট, জাহাজে সব জায়গা থেকে দেখা যাবে, সব দিক থেকে দেখা যাবে। ওকে, তো পাইলট ভেসেল কি লাইট দেয়? হোয়াইট, রেড। যদি সে ফিশিং ভেসেল, যদি ফিশিং করতে থাকে তাহলে ফিশিং ভেসেল, ফিশিং ভেসেল হলে কি লাইট দেবে? উপরে রেড, রেড আর নিচেরটা হোয়াইট। ফিশিং ভেসেল হলে কি লাইট দেবে? ওপরেরটা রেড আর নিচেরটা হোয়াইট। এগুলো বইটাতে তোমরা ফলো আপ করবে, বইটা সবসময় দেখতে থাকবে, আমি খালি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। বই প্রত্যেককে পড়তে হবে, তবে প্র্যাকটিস হবে। তো ফিশিং ভেসেল হলে রেড হোয়াইট হবে, ঠিক আছে, বোঝা গেছে। এটা যদি রেস্ট্রিক্টেড ভেসেল, রেস্ট্রিক্টেড মানে কি? রেস্ট্রিক্টেড মানে এটাই যে সে যে কাজটা করছে সেই কাজের জন্য বা চ্যানেলের কোনো অবস্থার জন্য সে যে কোর্সটা যাচ্ছে, তোমার সুবিধা মতো সে কোর্সটাকে অল্টার করতে পারবে না সহজেই, এই জন্য সে রেস্ট্রিক্টেড। বোঝা গেছে? যে জাহাজটা যাচ্ছে একটা চ্যানেলের মধ্যে থেকে, সে হয়তো এমন কাজ, ধরে নাও সে ট্রয়িং নিয়ে যাচ্ছে, পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কারোকে, তুমি সামনাসামনি এসে গেলে সে তো বন্ধ করতে পারবে না, বা সে ডান দিকে বা বাম দিকে যেদিকে খুশি তখন ঘুরে যেতে পারবে না, ঠিক আছে। এমার্জেন্সি কেউ সামনে চলে এলো বা তোমাকে সাইড দেওয়ার জন্য দেখা যাবে সে যদি ডান দিকে কোর্স অল্টার করে, তার পিছনে যে টোয়িংটা আছে, টোয়িংটা সে সঙ্গে সঙ্গে অল্টার ঠিক মতো হচ্ছে না, মানে সে অসমর্থ, তার সামর্থ্য নেই যে হট করে বা কোনো কারণে তোমাকে সাইড দেওয়ার জন্য সে তার কোর্স অল্টার করতে পারে, ডান দিক বা বাঁ দিক করতে পারে। সে একটা নির্দিষ্ট যে কোর্সে যায় সেই কোর্সটা ধরেই তাকে অনেকক্ষণ চলতে হয়, সে তোমাকে তাকে সাইড দিতে পারে না। এই জন্য সে সিগন্যাল দিয়ে দেয় রেস্ট্রিক্টেড, যে দেখো ভাই, আমি একটু আমার যে কাজ করছি সেই কাজের জন্য আমি একটু রেস্ট্রিক্টেড আছি, আমি তোমাকে সাইড দিতে পারবো না, তুমি আমাকে সাইড দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। এই জন্য সে রেস্ট্রিক্টেড লাইট দেয়। তো রেস্ট্রিক্টেড কি লাইট দেয়? 2 রেড, মানে উপরেরটা রেড, তারপর একটা হোয়াইট আর নিচে একটা রেড, রেড হোয়াইট রেড, রেড হোয়াইট রেড, রেড হোয়াইট রেড,
এগুলো সব কিন্তু 32 পয়েন্ট, সমস্ত এই সেই নেভিগেশন লাইট কটা ছাড়া এগুলো সমস্ত কিন্তু 32 পয়েন্ট লাইট, ঠিক আছে। 360 ডিগ্রি, রেড হোয়াইট রেড রেস্ট্রিক্টেড ভেসেল। তাহলে পাইলট ভেসেল হলো, ফিশিং ভেসেল হলো, রেস্ট্রিক্টেড হলো। আর একটা ভেসেল আছে দেখবে সিবিডি ভেসেল, মানে 3টে রেড থাকে, 3টে রেড লাইট, 1 2 3, 3টে রেড লাইট। সিবিডি ভেসেল মানে কনস্ট্যান্ট বাই ড্রাফট ইন হার এবিলিটি, কনস্ট্যান্ট বাই ড্রাফট ইন হার এবিলিটি। বলে কনস্ট্যান্ট বাই ড্রাফট मतलब কি, যে জাহাজটা অনেক সময় জাহাজের ড্রাফট দেখা যাবে 14 মিটার ড্রাফট, সে চ্যানেলে যে চ্যানেল থেকে যাচ্ছে সে চ্যানেলে কোনো রকম হয়তো 16 মিটার বা 18 মিটারের চ্যানেল, ডিপ ডিপ 18 মিটার, তো সে 14 মিটার জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে, বা 20 মিটারের ডিপ আছে সেখানে, সে 14 মিটার ড্রাফট নিয়ে সেই চ্যানেল থেকে যাচ্ছে। তো সে যদি তোমাকে সাইড দিতে যেতে হয় তাহলে তাকে ডান দিকে বা বাঁদিকে যেতে হবে, কিন্তু দেখা যাবে যে ডান দিকে বাঁদিকে গেলে ওখানে নাব্যতা কমে যেতে পারে, কম হতে পারে, মানে দেখা যাবে ফট করে 12 মিটার জল হয়ে যেতে পারে ডিপ। সুতরাং ওকে বলা হয় সিবিডি ভেসেল, মানে যে চ্যানেল থেকে যাচ্ছে সেই চ্যানেলের গভীরতা অনুযায়ী তার ড্রাফট অনেক বেশি আছে, ঠিক আছে। তার ড্রাফট বেশি ড্রাফটের জাহাজ যখন কম ডিপের চ্যানেল থেকে যায় তখন তারা সিবিডি সিগন্যালটা দিয়ে দেয়। 3 রেড লাইট, 32 পয়েন্ট কিন্তু। তো এই একটা রেস্ট্রিক্টেডের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, রেস্ট্রিক্টেড ভেসেল, সে তো তোমাকে সাইড দিতে পারবে না। সুতরাং সিবিডি ভেসেল যদি তুমি দেখো তোমাকে তাকে সাইড দিতে হবে, বোঝা গেছে। তো রেস্ট্রিক্টেড ভেসেল। আর কি একটা আছে ড্রেজার, ড্রেজার ড্রেজার ইন্টারন্যাশনাল ড্রেজার কি লাইট দেয়, ওই রেস্ট্রিক্টেডের লাইট তো দেবেই, রেড হোয়াইট রেড, ড্রেজার মানেই রেস্ট্রিক্টেড। আর ড্রেজিং করছে তার জন্য ইয়াডামে আরো লাইট ঝোলায়। কি লাইট ঝোলায়, যে ড্রেজার অনেক সময় দেখা যায় জাহাজের একদিকে টিউব ফেলা থাকে, পোর্টস হোক বা স্টাবোর্ড হোক, এনি হাউ হোয়াট এভার, তো হয়তো বাম দিকে তার ড্রেজিং কাজ চলছে জাহাজের, ঠিক আছে, বা ডান দিকে তার ড্রেজিংয়ের কাজ, যে দিকে ড্রেজিংয়ের কাজ চলবে, যে দিকটা ড্রেজিং করবে কাজ চলবে সেদিকটা সে দেবে দুটো রেড লাইট, 2 রেড লাইট, 2 রেড লাইট। আর যে দিকটা ক্লিয়ার আছে সেদিকে দেবে দুটো গ্রিন লাইট, ঠিক আছে। লাইট মতলবই মানে হচ্ছে কি রাত্রে, বোঝা गया। तो 2 रेड लाइट देगा और एक 2 ग्रीन लाइट देगा। जिधर ड्रेजिंग चालू है, काम चल रहा है, उधर देगा 2 रेड लाइट, और जिधर क्लियर है वो साइड में देगा 2 ग्रीन लाइट। व्हाट एवर साइड हो सकते हैं, ये साइड में अगर काम क्लियर है तो ये साइड में 2 ग्रीन देगा, ये साइड में अगर क्लियर है तो ये साइड काम चालू है तो ये साइड 2 रेड देगा। तो ड्रेजर भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया, समझ में आया ना। अभी है सेलिंग वेसल। सेलिंग वेसल मतलब जो पाल से चलते हैं, पाल का उपकरण से हवा में काम पे लगा के चलते हैं। सेलिंग वेसल क्या लाइट देते हैं, अगर 20 मीटर का बड़ा सेलिंग वेसल है, ध्यान रखने का, 20 मीटर का बड़ा सेलिंग वेसल है तो एक ग्रीन और रेड, ऊपर में एक ग्रीन और रेड देगा। सेलिंग वेसल भी साइड लाइट स्टर्न लाइट देते हैं, याद रखने का। सेलिंग वेसल सब सेलिंग वेसल देते हैं, ग्रीन और साइड लाइट देते हैं, स्टर्न लाइट देते हैं। और मास्ट 20 मीटर का बड़ा होगा तो मास्ट दे सकते हैं, 20 मीटर का बड़ा होगा तो एक मास्ट लाइट भी जला सकते हैं सेलिंग वेसल। और 20 मीटर का बड़ा होगा तो सेलिंग का जो इंडिकेशन है, पाल का इंडिकेशन जो ग्रीन और रेड, ग्रीन लाइट और रेड लाइट देगा। तो हो गया कौन सा जहाज हो गया, पावरडाइंग वेसल तो है, सेलिंग वेसल है। सेलिंग वेसल क्या देता है, ग्रीन रेड, पायलट वेसल व्हाइट रेड, ठीक है। और क्या, फिशिंग वेसल रेड व्हाइट। एक किताब में है, उधर नहीं भी होगा, किताब में देखो, वो भी करते रहो प्रैक्टिस, और एक खाता में नोट डाउन करो जो मैं बता रहे, बार बार करके खींच के देख के नोट डाउन करो कौन सा वेसल कौन सा लाइट जलाते हैं, सिग्नल लाइट। फिशिंग वेसल क्या लाइट जलाते हैं, फिशिंग वेसल
रेड व्हाइट, रेड और ये व्हाइट, नीचे व्हाइट ऊपर में रेड। पायलट वेसल ऊपर व्हाइट नीचे रेड, पायलट वेसल चलाते हैं। सेलिंग वेसल ऊपर में ग्रीन नीचे व्हाइट, सेलिंग वेसल चलाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड वेसल रेड व्हाइट रेड, इन वर्टिकल लाइन, एक लाइन पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक लाइट इधर जलेगा एक इधर जलाएगा एक इधर जलाएगा, ऊपर नीचे खाली नहीं, इन द वर्टिकल लाइन जलाना पड़ेगा। एक ही लाइन पे आपको देना पड़ेगा 3 लाइट्स, रेड व्हाइट रेड। अगर पायलट वेसल एक ही लाइन में ही देना पड़ेगा, व्हाइट रेड। फिशिंग वेसल रेड व्हाइट, इन द वर्टिकल लाइन का अंदर ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इधर एक जला दिया रेड, इधर एक व्हाइट, इधर एक रेड, ऐसा नहीं है, ये रूल्स है। ठीक है, ये सब में थोड़ा देखो। ठीक है, तो वेसल यार, और क्या हो गया, ड्रेजर हो गया। कौन सा लाइट कैसा लाइट देते हैं ड्रेजर, अगर ड्रेजिंग करेगा तो ये लाइट रहेगा, ड्रेजिंग नहीं किया तो रेस्ट्रिक्टेड वेसल हो गया। अगर ड्रेजिंग नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया ड्रेजर। और रेस्ट्रिक्टेड वेसल कौन सा लाइट देता है, डीप डार्क सीवीडी वेसल कौन सा लाइट देता है, ये नोट डाउन करते रहो। ये इतना टाइप का वेसल है, कितना टाइप का है, पावर ड्राइविंग वेसल है, पायलट लेके जाएगा तो पायलट वेसल है, फिशिंग करेगा तो फिशिंग वेसल है, सेल में जाएगा तो सेलिंग वेसल है, और सीवीडी वेसल अगर होगा तो ज्यादा डाप का जहाज होगा तो सीवीडी वेसल है, और कौन सा है, रेस्ट्रिक्टेड वेसल है। ठीक है, और फिशिंग ट्रॉलर भी है एक, फिशिंग ट्रॉलर, वो ट्रॉलर हो जाता है। ट्रॉलर क्या लाइट देता है, ऊपर में ग्रीन नीचे व्हाइट, ग्रीन व्हाइट ट्रॉलर हो जाते हैं, फिशिंग ट्रॉलर। ठीक है, नोट डाउन करते रहो, करके रखो, ये सब विदेश में देखने का, नहीं तो याद नहीं रहेगा। लाइट तो एक बार भूल जाएगा तो याद नहीं रहेगा, एक बार समझ लो, समझ लेने के बाद आप लोग को पूरा दिन याद रहेगा। ठीक है, इतना टाइप ऑफ वेसल है, समझ में आया। अभी तुमको और एक चीज सिखाएगा तुम लोगों को। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक लेके जाता है, सब लोग लगभग बाइक चलाते हैं, बाइक लेके जाता है कोई, गाड़ी कार या बाइक तुम्हारा सामने से आता है तो तुम किधर साइड देते हैं, तुम तुम्हारा बाएं का तरफ हट जाते हैं, घुमा देते हैं, उसको दाहिने से क्रॉसिंग करवाते हैं ना। जो सामने तुम्हारा कोई बाइक आ रहा है, तुम किधर जाते हैं, अपना बाएं का तरफ जाता है ना, पोर्ट साइड में जाता है, पोर्ट साइड में जाता है, और स्टारपोर्ट को उसको रास्ता छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो मैं रास्ता जब बोल रहे तो पोर्ट स्टारपोर्ट नहीं बोलेगा, समझ में नहीं आएगा। तुम लोग रास्ते में जब जा रहे हैं, सामने अगर कोई बाइक आ रहा है, कोई गाड़ी या टैक्सी आ रहा है, तुम किधर जाता है, तुम्हारा बाएं साइड जाता है, उसको तो दाहिना साइड से रास्ता छोड़ देते हैं, है कि नहीं। लेकिन पानी में उसका उल्टा है, इंटरनेशनल रूल्स जो बना है वो उल्टा आपको बता रहे हैं, वो ध्यान से सुनो। अगर कोई जहाज, तुम जहाज लेके जा रहे हैं, पावर ड्राइविंग वेसल लेके जा रहे हैं, कोई जहाज तुम्हारा सामने से आ रहा है, मतलब रूल नंबर 14 पकड़ लो, रूल्स नंबर 14 बुक में थोड़ा देखो। ठीक है, रूल नंबर 14 में कोई जहाज तुम्हारा सामने से आ रहा है, तुम्हारा हेड टू हेड, हेड ऑन पोजीशन, रूल नंबर 14 हेड ऑन पोजीशन, हेड टू हेड। कब एक जहाज हेड टू हेड होता है, तुम्हारा जो साइड लाइट है और हेड मास्ट लाइट है, और उसका जो साइड लाइट है मास्ट लाइट है एक पैरेलल में है, तो अब जहाज होता है हेड टू हेड, हेड टू हेड पोजीशन, वो रूल नंबर 14 है। ठीक है, तो रूल में है, अगर कोई तुम्हारा हेड टू हेड आ रहा है, तुम तुम्हारा स्टारबोर्ड साइड में कोर्स ऑल्टर करो, उसको तुम्हारा पोर्ट साइड से रास्ता दो, ये रूल से। किधर से रास्ता छोड़ेगा, ठीक शोर में जो है हम लोग गाड़ी का जो है उसका उल्टा है। जहाज चलाने के लिए कोई तुम्हारा हेड टू हेड आ रहा है, दो जहाज का मास्टर जो करेगा, अपना अपना स्टारबोर्ड साइड में कोर्स ऑल्टर करेगा, पोर्ट साइड से रास्ता छोड़ेगा, याद रखने का। हेड ऑन पोजीशन में अगर जहाज आ गया, खुद स्टारबोर्ड साइड से कोर्स ऑल्टर करके उसको पोर्ट साइड से रास्ता छोड़ना है। तुम भी करोगे, वो भी तुमको ऐसे ही करेगा, ये रूल्स है, बिना बताए साइड हो गया।
हम लोग गाड़ी में हॉर्न लगाता है, इधर से जाएगा उधर से जाएगा, ऐसे है, ऐसे बात नहीं है। अगर हेड ऑन पोजीशन, हेड ऑन सिचुएशन में रहेगा, आपने आपने को पोर्ट स्टारबोर्ड साइड अल्टर करना पड़ेगा, पोर्ट साइड को दूसरा जहाज के लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल नंबर 14, वो भी नोट करके रखो। हेड ऑन पोजीशन, सिचुएशन, पोजीशन कुछ भी है। ठीक है, अभी बताएगा। अच्छा, रूल नंबर 14 हो गया, 13 भी बता देते हैं। रूल नंबर 13 लिख के रखो, नोट डाउन करो, और वो किताब भी थोड़ा देखो, जो जो रूल्स में बता रहे हैं। लास्ट टाइम बताया था रूल नंबर 21, 22, 23, शायद ये 3 रूल बताया था। 3 रूल ध्यान से पढ़ो किताब में, मैं जो बोल रहा है वो भी थोड़ा देखो। क्लास करते करते कुछ गलत बोल दिया, तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज लगा तो मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, तो लेकिन देखते रहो। अभी रूल नंबर 14 बता दिया, अभी 13 थोड़ा बता देता है। रूल नंबर 13 नोट डाउन। रूल नंबर 13 जो है ये है ओवरटेकिंग। रूल नंबर 13 जो ओवरटेकिंग शिप। ठीक है, तो ये सामने वाला जहाज है और ये तुम्हारा जहाज है। तुम अगर इसको ओवरटेक, तुम्हारा ये जहाज से तुम्हारा स्पीड ज्यादा है, तुम पीछे वाला जहाज है, ये सामने वाला जहाज है, तो सामने वाला जहाज से तुम्हारा स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है मतलब मैं इसके पीछे से थोड़ी जाएगा, मैं तो ओवरटेक करके उसको आगे पीछे छोड़ के जाएगा। तो ओवरटेकिंग का भी एक रूल्स है, रूल नंबर 13। जब ओवरटेक करोगे तुम जहाज को, तो देखने का जो किधर में ओवरटेक करेगा फास्ट, चैनल तुमको देखना पड़ेगा, जो किधर से मैं ओवरटेक कर रहा हूं उसको। कोई बैंड है सामने तुम्हारा, चैनल में बैंड है, तो उधर तुम ओवरटेक मत करो, कर नहीं सकते हैं, वो तुमको साइड छोड़ेगा नहीं। या बहुत पातला या नैरो चैनल है, सरू खाड़ी, সেখানটায় তুমি ওভারটেক করতে পারবে না, है कि नहीं। तो अगर चौड़ा अच्छा रास्ता मिलेगा तो अब उसको ओवरटेक तुम कर सकते हैं। जब ओवरटेक करेगा तुम तुम्हारा स्टारबोर्ड साइड में अल्टर करो कोर्स, उसका फास्ट स्टारबोर्ड साइड के साइड से उसको ओवरटेक कर सकते हैं, करना चाहिए या कर सकते हैं। तो अगर स्टारबोर्ड साइड से ओवरटेक करेगा तो जब तुम वो जहाज को ओवरटेक कर रहे, तो अब क्या करना पड़ेगा, स्टारबोर्ड साइड अल्टर किया और उस टाइम जहाज का कोर्स और स्पीड कोई चेंजेस नहीं होगा, दोनों जहाज का ही। ये मास्टर को भी मालूम है, ये भी मास्टर है ना। तो जब ओवरटेक कर रहे हैं, अगर तुम्हारा जहाज का बीम बाव स्टार्न मालूम है ना, ये जहाज है, जहाज का सामने ये पोर्शन है बाव, स्टारबोर्ड बाव या पोर्ट बाव, और ये जो जिधर एकोमोडेटर वगैरह ये सब है, बीच में जो है ये होता है बीम, और पीछे ये जो आपका इधर होता है स्टार्न। तो ये है बीम। बीम का अगर 2 पॉइंट में आ गया कोई जहाज ओवरटेक कर रहे हैं, तो उस टाइम तुम्हारा स्पीड और कोर्स बराबर, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, सेम रख के उसको ओवरटेक करो। दोनों जहाज का लिए ये है, ये भी नहीं करेगा, तुम तो करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम सीख के जा रहे हैं, तुम्हारा पास भी सर्टिफिकेट है। ठीक है ना, तो एक चेंज करके जाना पड़ेगा, कोर्स रेडी रख। जब तक ना ये जहाज पास हो जाएगा, तुम भी जब तक ये जहाज को पूरा ओवरटेक नहीं हो जाएगा, वो तो रखना पड़ेगा। पूरा ओवरटेक हो जाने का बाद तुम कोर्स अल्टर करके चेंजेस कर सकते हैं। पूरा जहाज ओवरटेक हो जाने का बाद तुम कोर्स अल्टर करके जा सकते हैं चैनल से। ये भी जब तक तुम ओवरटेक कर रहे हैं, पूरा जहाज ओवरटेकिंग नहीं हो रहा है, ये भी उसका स्पीड और कोर्स नहीं चेंज करेगा। ठीक है, और एक सिटी सिग्नल भी बता देते हैं इसका साथ। सिटी सिग्नल एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता था, वो सिटी सिग्नल शायद तुम देखेगा रूल नंबर 13 में है। रूल नंबर 13 ओवरटेक करने के लिए, अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो बीएचएम में आप बता सकते हैं। ठीक है ना, जो क्या जहाज को बता सकता है, ये जहाज का नाम पे बुला के, जो मैं तुम्हारा स्टारपोर्ट साइड से ओवरटेक करना चाहता हूँ या पोर्ट साइड से ओवरटेक करना चाहता हूँ, इधर पॉसिबल मिलेगा। ठीक है, उसको बता के करना पड़ेगा। तो वाकी टॉकी में बता सकते हैं, वो भी रिप्लाई देगा। अगर
सिटी में बताएगा। तो अगर तुम इसका पोर्ट साइड से ओवरटेक करना चाहता है तो यार नोट डाउन करो, नहीं तो रूल नंबर 13 में शायद है, रूल नंबर 13 देखो, ओवरटेक का सिटी सिग्नल, व्हिसल सिग्नल। अगर तुम पोर्ट साइड से ओवरटेक करना सॉरी स्टारबोर्ड साइड से ओवरटेक करना चाहता है तो उसको सिटी से हम लोग सिटी मार के भी बता सकते हैं। अगर वॉकी टॉकी में काम नहीं हो रहा है या वो रिप्लाई नहीं दे रहे तो व्हिसल से हम लोग भी उसको अलर्ट कर सकते हैं। कैसे अलर्ट? अगर मैं स्टारपोर्ट साइड से ओवरटेक करना चाहता है, स्टारपोर्ट साइड से ओवरटेक करना चाहता है तो उसको टू लॉन्ग ऑन शॉट ब्लास्ट देगा। ब्लास्ट मतलब व्हिसल, ब्लास्ट मतलब आवाज। क्या देगा? उसका स्टारपोर्ट साइड से मैं ओवरटेक करना चाहता है तो उसको कैसे अलर्ट करेगा? जो मैं तुम्हारा स्टारपोर्ट साइड से तुमको ओवरटेक करना चाहता है, ठीक है ना, तो कौन सा सिटी सिग्नल देगा? टू लॉन्ग ऑन शॉट। याद करो या नोट डाउन करो, टू लॉन्ग ऑन शॉट दिया स्टारपोर्ट साइड से। उसको पूछा, अगर ये एग्री होगा, ये अगर बोलेगा हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, अगर एग्री होगा तो ये कौन सा सिटी देगा तुमको? वन लॉन्ग वन शॉट, वन लॉन्ग वन शॉट, ये 4 ब्लास्ट देगा। कौन सा ब्लास्ट देगा? नोट डाउन करो, वन लॉन्ग वन शॉट, वन लॉन्ग वन शॉट। मतलब ओके तुम हमारा स्टारपोर्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं, ये अगर एग्री नहीं हुआ, ये जहाज तुमको एग्री नहीं हुआ, जो स्टारपोर्ट साइड पे खतरा है, पॉसिबल नहीं है, तो ये तुमको 5 शॉट ब्लास्ट देगा। 5 शॉट ब्लास्ट मतलब 5टा छोटा सिटी देगा। मतलब तुम नहीं, स्टारपोर्ट साइड से तुम्हारा जाएगा नहीं है, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, मैं रास्ता छोड़ नहीं सकता, तो 5 शॉट ब्लास्ट देगा, ठीक है। उस टाइम तुम उसको फिर पोर्ट साइड से मांग के देख सकते हैं, जो ठीक है स्टारपोर्ट साइड बंद है, जा नहीं सकता, तो पोर्ट साइड से हम जा सकते हैं, तो पोर्ट साइड में रास्ता मांगेगा। उस टाइम कौन सा सिटी देगा? टू लॉन्ग टू शॉर्ट, टू लॉन्ग टू शॉर्ट, टू लॉन्ग टू शॉर्ट ब्लास्ट देगा। जे ठीक है, मैं तुम्हारा पोर्ट साइड से रास्ता ओवरटेक करना चाहता है, समझ में आया? अगर ये एग्री हुआ तो तुमको फिर सेम ही देगा, वन लॉन्ग वन शॉट, वन लॉन्ग वन शॉट, ये 4 ब्लास्ट देगा। वन लॉन्ग वन शॉट, वन लॉन्ग वन शॉट, मतलब तुम पोर्ट साइड से जा सकते हैं। अगर डिसएग्री है, ये साइड में भी नहीं जा सकते हैं, तो फिर 5 शॉट ब्लास्ट देगा, ठीक है। मतलब तुम जा नहीं सकते, जाने से जोर जबरदस्ती नहीं जाने का, उसको पीछे पीछे ही जाने का, तुम्हारा स्पीड कम करके। अगर तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है तो कम करके उसको पीछे पीछे ही जाओ, जब मौका मिलेगा उस टाइम उसको पूछ के ओवरटेक करो। आया समझ में?